Hello guys, so today we will start with a glass tenure work. So the first thing which is very important in glass tenure painting is the liner part. If you don't have a proper lining on your tenure painting, it is waste. So today I will teach you some basic techniques of glass tenure paintings. So firstly, you need to have a rough paper drawing. Take anything, then don't start with the fresh drawings. Just take a rough paper. I have taken just a photocopy, you can say just a picture of Ganesha, just to practice it. So the first thing what we'll have, a paper with a simple drawing, whatever you can have in a cartoon, anything you can have it. So secondly, the second thing for the liner, you need the liners. I use Camlin liners and I'm using glass metallic liners. It's a golden metallic color. The first thing is golden metallic color. Now you need to do the practice. Basically in tenure art we use three types of liners: the gold one, the transparent one and the black one. These are the main liners we use in tenure art. So here we start with the liner part. As you see, I have taken a picture. Simple. Just take this tube. This tube come with the knob. ये एक नोजल के साथ आती है जिसको आप ऊपर लगा करके easily एक फाइन लाइन में ले सकते हैं. So starting with it, first is इसका फ्लो कैसे रखना है. Press it from the back side and then slowly push the tube and make straight lines like this. First practice some lines like this. See कि आपका कोई लाइन ब्रेक तो नहीं हो रहा है. अगर ब्रेक हो रहा है तो it means you need more and more practice. Out here as you see कि मेरा कोई भी लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है तो I can start with my practice work. So starting with the practice thing, the first thing हम क्या करेंगे, हमेशा जो भी आप ट्यूब ले रहे हो उसे बैक साइड से प्रेस करेंगे, आगे से नहीं प्रेस करेंगे. आगे से प्रेस करने से फ्लो ज़्यादा आता है. पीछे से प्रेस करके आपका फ्लो आपके कंट्रोल में होता है. सो हियर यू कैन सी आई एम डूइंग द लाइनर पार्ट. जैसे जैसे हम करते चले जाएं, इन केस यू सी इट्स नॉट डन, टेक अ ब्लेड और आप धीरे से करके उसको मिटा सकते हैं. यू डोंट नीड टू वाइप इट ऑफ या आपको दूसरा पेपर चाहिए. नो, फॉर द प्रैक्टिस टेक अ ब्लेड एंड जस्ट टेक इट आउट. अगेन आई विल डू इट. जब तक कि मेरा लाइनर वन गो में इस तरीके का नहीं आता, I will not stop my practicing work. So the more you practice the liner part, the more your painting is going to be beautiful. As you can see, I am doing a Balaji miniature in which I have done a very fine liner work. This is because if you do more practicing, you can have some fine designs and very beautiful pattern. Later on, we'll be doing some good and advanced level paintings also. In that, I will teach you how to make a designs. So, for this session, simply doing the liner work. Till the time you just complete with the liner work. Now, main points. When you are doing a body, आपको बहुत फाइन लाइन देनी है. मीन्स ना मोटी ना पतली.
क्योंकि हमें सिर्फ एक बॉर्डर क्रिएट करना है, क्योंकि बाद में जब हम कलर ऑफ कर लेते हैं तो इसी पे हमें ब्लैक लाइनर भी यूज करना होता है टू क्रिएट बिल्कुल क्रिएट कि कहाँ कहाँ बॉडी है. So here you can see I am putting up a very fine line on the structure. Where it comes to the jewelry part, हम थोड़ा सा thick line करेंगे. Thick line की क्या टेक्निक है? हम एक ही जगह पे ज्यादा देर तक थोड़ा प्रेस करेंगे और फिर उसको कोई शेप देंगे. As you see, अगर थोड़ा ज्यादा प्रेस करेंगे तो थोड़ा मोटा निकलेगा. अगर हम लाइट उसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल एक फाइन लाइन में आपका एक बॉर्डर देता हुआ. सो मेक श्योर लाइनर्स के प्रेशर पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पर थिक लाइन देनी है. जहां हमें थिक चाहिए वहां हम ज्यादा प्रेशर देंगे, जहां हमें कम करना है प्रेशर जहां हमें बहुत फाइन लाइंस देनी है वहां हमारा प्रेशर कम होगा. सो दीज आर द टेक्निक्स. ज्वेलरी हमेशा मोटी लाइनअप से आएगी. जो भी ज्वेलरी पार्ट होगा वो हम लाइनर्स मोटे करेंगे, वहां हम पतले लाइनर्स यूज नहीं करेंगे, वहां हमें थिक लाइनिंग वर्क करनी है. नाउ हियर इज अ धोती. यू कैन सी दिस इज द धोती ऑफ गणेशा. यहां पर भी हम थिक लाइनिंग करेंगे. जब हमें कोई बॉर्डर क्रिएट करना होता है तो हम लाइनर थिक ही करेंगे. तो यहाँ पे जब हमें ड्रेस का आउटलाइनिंग करना है तो अगेन we'll do a thick lining. So here you can see a very thick lining going around his dhoti. Second और third point is, फर्स्ट पॉइंट क्या था? जब भी हम बॉडी आउटलाइनिंग करेंगे इट वुड बी अ वेरी फाइन लाइन. ज्वेलरी आउटलाइन करेंगे थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा और थिक लाइनिंग्स में ज्वेलरी आउटलाइनिंग करेंगे. थर्ड स्टेप वाज दैट व्हेन वी आर डूइंग द आउटलाइनिंग ऑफ द ड्रेस, कोई भी ड्रेस मटेरियल दुपट्टा हो गया या कोई आपका ड्रेस जा रहा है, वो सारा आपका अगेन थिक लाइनर से होगा. समटाइम्स अगर थिक लाइनर हमारा बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है तो हम उसको डबल लाइनिंग देंगे. मीन्स जब ये ड्राइड अप हो जाएगा तब हम इसको एक बार और लाइनर करेंगे इसी के ऊपर. एज यू कैन सी, क्योंकि हमें ये लाइनर आउटलाइन करना है, ये दिखना चाहिए, हाईलाइटेड करना है. जो भी चीजें हमें हाईलाइट करनी है हम उस पर डबल से ट्रिपल लाइनर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. सो हियर सम बेसिक वंस. यहां आप देख रहे हैं मैंने डबल लाइनिंग प्रोवाइड करी है. ऐसे ही करके आप कई सारे रफ स्ट्रक्चर्स को लेकर के टेक अ लाइनर, डू द लाइनर वर्क टिल एक ही आपका देख रहे हैं जबकि आपका लाइनर वर्क बहुत परफेक्ट आने लगा है, देन यू कैन स्टार्ट विद योर tanjore पेंटिंग. सो वेट एंड वॉच द टेक्निक्स ऑफ ग्लास कलर इन माई सेकेंड क्लास. सो प्लीज ज्वाइन मी and subscribe my channel, YouTube channel. Stay safe and stay positive.